हम्म। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का हमारे स्कूल में इस्तकबाल है। वेलकम टू माय स्कूल। देखिए, आज हमारे स्कूल में यौम रियाजी मनाया जा रहा है। ये मोहम्मदिया स्कूल के सभी बच्चों की खूबी है और खुशनसीबी है कि हमारे स्कूल में रियाजी की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इस नुमाइश में हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस नुमाइश में आपको हमारे स्कूल के तमाम तलबा अलग अलग ग्रुप की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। तो आज आपको रियाजी की मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और आज आपको हमारा ग्रुप एक रियाजी की एक ख़ास ब्रांच, एक ख़ास हिस्से के बारे में मालूमात फराहम करेगा। और दूसरी बात तो यह है कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि उर्दू स्कूल के बच्चों को अंग्रेज़ी में बात करनी नहीं आती या इन्हें अंग्रेज़ी में मालूमात हासिल नहीं होती। तो जी हाँ, आज आपको हम अंग्रेज़ी में मालूमात फराहम करेंगे। Good morning. My name is Sumira Sheikh Abdul Hafiz and my friend name is Misbah Sheikh Feroz. My group name is Hazrat Umar Farooq and my topic name is angles. Angles used for daily life are doors, buildings, chairs, tables, pyramid. For example of angles. Angles. When two lines intersect each other, then they form the angles. That two lines or segment of lines is called the arms of that angle. The first or starting arm is called a initial arm and the second arm is called a terminal arm. Now there are various types of angle based on their properties. For example, acute angle, right angle, obtuse angle, linear pair of angles. So number 1, acute angle. The angle whose measure in between 0 to 90 degree is called a acute angle. Number 2, right angle. The angle whose measure 90 degree is called a right angle. Number 3, obtuse angle. The angle whose measure in 90 to 180 degree is called a obtuse angle. For example, 120 degree. Linear pair of angles. The angle whose measurement angles A, B, C. Sum measurement of angles D, B, C equal to 180 degree. Vertically opposite angle. Here angle is called vertically opposite angle. Two lines then called each other. When two lines intersect each other, then they form vertically opposite angle. Okay, Yes. what is the property of vertically opposite angle? What is this and what is this? This is a protractor. Protractor is a basic geometric instrument and measure. The angles is mathematics. Assalamualaikum and good morning all of you. Welcome to our school, Muhammadiyya Urdu High School. My name is Shifa and my group name is Hazrat Usman Ghani. Today we are celebrating here the Mathematics Day. Math is most easy and interesting subject. Now our group will provide information about some specific figures which are belong to geometry, that is parts of mathematics. The name of the figure is triangle. Yes, we will provide you useful and important information about triangle. Good morning. My name is Ashin Sayyed Yusuf. Our topic name is classify the triangles. Here is the way which they can be classified is the length of their side. First type of triangle is the triangle which has no two sides are equal. It's called scalene triangle. It means AB is different to BC and BC is different to AC. The other kind of triangle is a triangle which has two sides are equal. It's called isosceles triangle. It means PQ is equal to PR and QR is different. The third type of triangle is a triangle which has all three sides are equal. It's called equilateral triangle. Remember, the word by itself tells you that the equi is equal and the lateral is side. It means LM is equal to MN and LN is equal to MN. Acute angle triangle. The triangle which has all the angles are of measure less than 90 degree. That means we can say that all the three angles is acute angle. So this triangle is called acute angle triangle. Obtuse angle triangle. The triangle in which one angle measure more than 90 degree. So this triangle is called obtuse angle triangle. Right angle triangle. The triangle in which one angle measure 90 degree. So this triangle is called right angle. Now tell us any triangle shape that you use in daily life. Yes, we use equilateral triangle and isosceles triangle like samosa, slice of a pizza, slice of a cake, sandwich. What is this? Acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle, scalene triangle, isosceles triangle,
इक्विलेटरल ट्रायंगल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर स्कूल। देखिए आज हमारे स्कूल में यौम रियाजी मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे स्कूल के तमाम तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज हमारे स्कूल के तमाम तलबा जो ग्रुप की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, आपको रियाजी की मुख्तलिफ किस्मों की मालूमात फराहम करेंगे। हमारा जो ग्रुप है आपको रियाजी की खास ब्रांच, रियाजी का खास हिस्सा है, उस बारे में मालूमात फराहम करेगा। दूसरी बात ये कि आमतौर से उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के बारे में ये समझा जाता है कि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती या उन्हें अंग्रेज़ी में मालूमात फराहम नहीं होती, इसीलिए हमारा जो ग्रुप है आपको अंग्रेज़ी मालूमात फराहम करेगा। Now all of you are well known of some geometrical figure like circle, triangle, rectangle, square. Our group member will tell some specific types of figures which has four sides, four angles, and we will tell you about their properties. To figure which has four sides, four angles. Square, quadrilateral. Quadr means four, lateral means sides. Quadrilateral means the figure which has four sides, or we can say that four-sided figure. One type of quadrilateral is square. What is the square? Which has the property of square. Square is the figure which has four sides as well as four angles. The main property of the square is all the four sides are equal, that is congruent, and all the four angles are also congruent. And the angles of the square of right angle are right angle. Square is right angles. So sum of all the four angles measure in 360 degree. Now here has two diagonals and the properties of diagonals, and see the. What is the property of diagonals? Diagonals of square. Equal. Okay. Means AC diagonal is equal to BD. Okay. Now see here the square has two diagonals and the properties of diagonals, and see the properties of diagonals. Two diagonals, the both diagonals are perpendicular. Diagonals of the square are always equal. Okay. Now we will tell you about another types of quadrilateral is rectangle. The figure ABCD, and the main property of the rectangle is see here. The AB and CD is opposite sides and BC and AD is opposite sides. The main property of the rectangle is all the opposite sides. Another types of quadrilateral is rhombus, kite, parallelogram, trapezium. What is the property of which are the properties of parallelogram? Two sides are equal and two sides are parallel. Which two sides? CD and AB. That means opposite sides. BC and AD is opposite sides. Okay. The types of quadrilateral: trapezium, rectangle, kite, parallelogram, square, and rhombus. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम माहिन शमी पठानी, हम जमात नहूम के तलबा हैं। हमारे ग्रुप का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आज हमारे स्कूल में रियाजी की नुमाइश यानी मैथ्स एग्जीबिशन मनाया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में हमारे स्कूल के तलबा आपको अलग अलग टॉपिक पर मालूमात फराहम करने वाले हैं। हमारा जो ग्रुप है आज आपको परसेंटेज के बारे में मालूमात देगा। परसेंटेज यानी फीसद, पर यानी एक सेंटेज यानी 100 सेंचुरी। जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट में 100 रन बनाता है तो आप कहते हैं कि सेंचुरी बना लिया। सेंचुरी यानी 100। मिसाल के तौर पर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि 3% ऑफ। 3% ऑफ मतलब 3% डिस्काउंट, 3% छूट। आप 100 रुपये वाली चीज़ खरीद रहे हैं, उस पर 3% छूट है, मतलब वो आपको 97 रुपये में मिलेंगी। ऐसे ही कहीं 3% ऑफ होता है, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 40%, कहीं 50%। आप 300 रुपये वाली चीज़ खरीद रहे हैं, उस पर 50% ऑफ है, मतलब वो आपको 150 रुपये में मिलेंगी। 100 रुपये वाली 50 रुपये में मिलेंगी। ऐसे ही परसेंटेज होता है। एक वो परसेंटेज होता है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा इम्तिहान में 600 में से 300 नंबरात हासिल करता है तो उसका परसेंटेज यानी फीसद कितना होगा। तो आज हम आपको परसेंटेज निकालना सिखाएंगे। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और हमारा बताया हुआ तरीका आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिफा शेख है, मैं जमात नहूम की तालिब हूँ। परसेंटेज
यानी फीसद। 5% ऑफ आप 5 ऊपर लिखेंगे यानी कि शुमार पुरिंदा, नीचे है 100 यानी कि नसबनुमा। 15% ऑफ यानी 600 रुपये, 600 वाली चीज़ आपको 15% ऑफ में मिलेंगी, तो आप बराबर की अलामत लगाएंगे, 600 लिखेंगे, ज़र 15/100। इसके दो नीचे के 2 जीरो चले जाएंगे, ऊपर के 2 जीरो चले जाएंगे, तो 6 को 15 से ज़रब करेंगे तो आपको 90 रुपये छूट मिलेंगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा होता है कि भाई 600 रुपये की कोई चीज़ है या 1000 रुपये की चीज़ है या 540 रुपये की चीज़ है, उस पर कहीं 10% 15% ऑफ होता है, तो वो कैसे निकाला जाता है, आप ये सिखा रहे हैं। मतलब 600 रुपये की चीज़ पर अगर 15% ऑफ है तो 600 रुपये का 15% होता है 90 रुपये, मतलब 90 रुपये छूट मिलेगी। तो 600 रुपये की चीज़ पर अगर 90 रुपये छूट मिलेगी तो वो चीज़ 510 रुपये में इंसान को मिलेगी। अच्छा, वेरी गुड। और 5% को 5/100 लिख सकते हैं, तो 10% को कितना बटे कितने लिखेंगे? 10/100। बेहतरीन, वेरी गुड। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 600 नंबर के पेपर लिखता है, इसमें से उसको 465 नंबर मिलते हैं, तो आपका इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? नीचे 600 लिखेंगे, ऊपर 465, इसके नीचे के 2 जीरो चले जाएंगे, तो आप 6 से 465 को तकसीम करेंगे तो इसका जवाब 77.50% आएगा। अच्छा, मतलब 465 नंबर अगर किसी बच्चे को इम्तिहान में मिलते हैं, 600 नंबर के कुल पेपर्स होते हैं, तो कुल नंबरात अगर 600 हैं तो उसमें से 465 बच्चे ने अगर नंबरात लिया है तो परसेंटेज कितना आप मालूम कर सकते हैं? मतलब 465/600 आएगा, वो उसको ज़रब देंगे 100 से तो 77.50 आ जाएगा जवाब। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अक्सर मोहम्मद अली खान है, मेरे ग्रुप का नाम मूसा बिन नसीर है। आप सभी का हमारे स्कूल में इस्तकबाल है। वेलकम टू आवर स्कूल। देखिए, आज हमारे स्कूल में यौम रियाजी मनाया जा रहा है, इसलिए आज रियाजी की यहाँ पे नुमाइश बनाई जा रही है। नुमाइश में जो यहाँ पे इनेकाद किया गया है, उसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे स्कूल के तलबा जो कि अलग अलग ग्रुप की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है, वो आपको रियाजी के मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। हमारा जो ग्रुप है वो रियाजी के एक खास ब्रांच के बारे में मालूमात देगा। देखिए, हम वक्त को ज़ाया ना करते हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है फार्मूला। जैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल होते हैं, वैसे ही सवाल हल करने के लिए कुछ उसूल होते हैं जिन्हें कहते हैं फार्मूला। तो मेरे साथी फातिमा शेख शफीक वो आपको मॉडल्स के बारे में कुछ मालूमात फराहम करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये है कोन, जिसे हम उर्दू में मखरूत कहते हैं। आपने मेहंदी का कोन देखा होगा, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, ठीक उसी तरह ये भी कोन है। इसका वॉल्यूम यानी हजम। फॉर एग्जांपल, 2 आइसक्रीम के कोन हैं, एक में ज़्यादा आइसक्रीम है, एक में कम आइसक्रीम है, तो बताइए आप कौन सा लेना चाहेंगे? जाहिर है आप ज़्यादा आइसक्रीम वाला कोन लेना चाहेंगे, वो उसका वॉल्यूम हुआ यानी हजम हुआ। यहाँ पर इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर की कुव्वत 2h है। यह है स्पेयर, जिसे हम उर्दू में कुर्रा कहते हैं। आपने गेंद देखी होंगी, संतरा देखा होगा, नींबू देखा होगा, ठीक ये भी उसी तरह स्पेयर है, जिसे हम इसका वॉल्यूम यानी हजम 4/3 पाई आर की कुव्वत 3 है। यह है सिलेंडर, जिसे हम उर्दू में इस्तवाना कहते हैं। इसका वॉल्यूम यानी हजम पाई आर की कुव्वत 2h है। आपने आपके घर में सिलेंडर, जिसे हम बाटला कहते हैं, आटे का डब्बा देखा होगा, ये उसी तरह सिलेंडर है। यह है क्यूब, जिसे हम उर्दू में मुकब कहते हैं। आपने रंग बिरंगी जो खेल होता है, जिसे हम क्यूब कहते हैं, ये उसी शक्ल का है, जिसका वॉल्यूम यानी हजम 1 की कुव्वत 3 है। यह है क्यूब, जिसे हम उर्दू में मुकबनुमा कहते हैं। आपके घर में क्यूबॉइड। ये है क्यूबॉइड, जिसे हम उर्दू में मुकबनुमा कहते हैं। आपने इस शक्ल का आपके घर में डब्बा देखा होगा कोई, जिसमें आप गोली रखते होंगे या कोई और चीज़, अलमारी, कबर्ड होती है। कबर्ड होती है। इसका वॉल्यूम यानी हजम L/B/H है। ये है ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसे हम उर्दू में एहराम कहते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा वही एहराम जो मिस्र में वाक़ है, तो जी हाँ, ये उसी शक्ल जैसा है जिसे हम उर्दू में एहराम कहते हैं। आपके स्कूल में कहीं पर इस किस्म का कोई आला आपने देखे हैं, कोई डिवाइस? जी सर, ये साइंस लैब में मंशूर नाम का एक आला होता है। मंशूर मुसलस, प्रिज्म ऑफ लाइट, वेरी गुड। अब हमारे साथी अफशा शेख बदरुद्दीन आपको कुछ ज़ाब्तों के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैथ्स में बहुत सारी फिगर यानी बहुत सारी शक्लें होती हैं और हर शक्ल के कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे खमदार सतह का रकबा, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, कुल सतह का रकबा, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, और हजम यानी वॉल्यूम भी निकालना होता है, जिन्हें याद रखना आसान नहीं होता। इसीलिए आज हमारा ग्रुप आपको एक ऐसा तरीका बताएगा जिससे अगर आप फार्मूला भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकेंगे। देखिए, ये सिलेंडर है।
अगर आप सिलेंडर, हम जब भी खमदार सतह का रकबा निकालते हैं तो हमको मुहित याद रखना होता है। आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर सर्कल नजर आएगा, यानी दायरा। दायरे के मुहित का रकबा है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर दायरा नहीं, यहाँ पर सिलेंडर है। तो सिलेंडर कैसे आया होगा? अगर मैं एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रखती जाऊँ, ऐसे 2-3 सर्कल रखती जाऊँ तो उससे सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर कैसे आया? सिलेंडर वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, जबरदस्त। इसीलिए यहाँ पर H आ गया और आपका खमदार सतह का रकबा बन गया। अब मैं आपको कुल सतह का रकबा कैसे निकालते हैं, मतलब आप ये बता रहे कि ज़ाब्ता बच्चों को याद करना मुश्किल जाता है, जबकि आप ये बता रहे कि ज़ाब्ता बनता कैसे है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस शक्ल के जरिए हम आपको बताएंगे कि कुल सतह का रकबा कैसे निकालते हैं। देखिए ये हॉलो सिलेंडर है, ये ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। हमने इसे ऊपर से पैक कर दिया और नीचे से भी पैक कर दिया। हमने इसका फॉर्मूला अभी निकाला, 2 पाई आर एच है, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा। और ये दायरे का रकबे का ज़ाब्ता है पाई आर की कुव्वत 2, और ये भी दायरे का रकबा है तो पाई आर की कुव्वत 2। हमने 2 पाई आर एच जैसे कि वैसा लिख लिया, और ये 2 बार आया है इसलिए 2 पाई आर की कुव्वत 2। अब हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन है इसलिए 2 यहाँ पर आ गया, पाई कॉमन है इसलिए पाई यहाँ पर आ गया, आर कॉमन है लेकिन यहाँ पर आर की कुव्वत 2 है इसलिए कॉमन सिर्फ आर निकलेगा। अब कॉस में एच जमा आर, और ये आपका कुल सतह का रकबा बन गया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इसे अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे, इसीलिए आज हम आपको एक कहानी के जरिए बताएंगे कि आप इसे आसानी से कैसे याद रखेंगे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, ज़्यादा लोगों के घर में टीवी नहीं होती थी, तो जिनके घर में टीवी होती थी ना, उनका घमंड बढ़ जाता था और वो बार बार कहते थे कि देखने नहीं दूंगा मैं, तो वो पर्दा लगा देते थे। लेकिन आर बहुत बेशर्म है, आर कहता है कि कैसे नहीं देखने देंगे तू, मैं तेरे सामने आ जाऊँगा। तो आर एच के सामने आ जाता है और ये आपका कुल सतह का रकबा बन गया। ज़ाब्ता हजम, हजम हमने अभी आपको बताया कि दायरे का हजम है पाई आर की कुव्वत 2, लेकिन यहाँ पर दायरा नहीं, हम आपको सिलेंडर बता रहे हैं। तो सिलेंडर दायरे का हजम नहीं, आपने बताया दायरे का रकबा है पाई आर कुव्वत 2। अच्छा आगे बताइए। हाँ, तो और पर यहाँ पर सिलेंडर है तो सिलेंडर हाइट की वजह से आया, इसलिए यहाँ पर एच है और आपका हजम भी लिखा है। अच्छा, ये हजम क्या है? सिलेंडर का हजम? हजम यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर जो चीज़ बैठती है उसे, जैसे हमारे साथी ने आपको बताया कि कोन के अंदर जितने आइसक्रीम बैठेंगी वो उसका हजम है। अच्छा, अब हमारी साथी अक्सा मोहम्मद हलीम आपको बताएंगे कि फॉर्मूले कैसे। ये इजी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स फार्मूला देखिए, इसे उर्दू में कहते हैं तौसी ज़ाब्ते। अगर हमने एक चादर बिछाई और उसे फोल्ड करके रख दिए तो ये मुख्तसर हो गया। अगर हमने वही चादर को फैला दिए तो ये तौसी हो गया। तौसी यानी बढ़ाना। तो क्या आपको ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता मालूम है? नहीं तो हम आपको बताते हैं। कॉस में ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 मसावी ए की कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 2। ऐसे हमने बहुत सारे फार्मूले बनाए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 का ज़ाब्ता। क्या ये ज़ाब्ते आपको ज़बानी भी याद हैं? यस, बोलिए। ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 का ज़ाब्ता। ए जमा बी कॉस की कुव्वत 3 मसावी ए की कुव्वत 3 जमा 3 ए की कुव्वत 2 बी अकेला जमा 3 ए बी की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 3। बेहतरीन। ए जमा बी कॉस कुव्वत 3 का ज़ाब्ता आपने बोले। इसी तरह ए मनफी बी का ज़ाब्ता है यहाँ पर, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। ए जमा बी जमा सी का ज़ाब्ता कॉस की कुव्वत 2 का भी ज़ाब्ता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फातिमा शेख शफी वो आपको कुछ मालूमात देना चाहते हैं। देखिए ये है बॉटल, जिसकी हाइट हमने नाप रखी है। इसकी हाइट है 21, जिसे हम सिलेंडर की शेप लिए। देखिए ये सिलेंडर, ये इसकी शेप का है, तो इसकी हाइट है 21। रेडियस यानी निस्फ कुत्र, जिसका निस्फ कुत्र 5 था, हमने निस्फ अभी हमने आपको कहा ये आधा होता है, निस्फ यानी आधा, तो हमने इसका आधा लिए। 5 का आधा 2.5 होगा। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बोतल में कितना पानी आएगा या कितना दूध आएगा या कोई भी लिक्विड कितना आएगा, उसका हजम आप मालूम कर सकते हैं। बताइए कैसे कर सकते हैं आप? अब देखिए, अच्छा चलिए, आपने कैलकुलेशन कर लिया, हमें फाइनल जॉब बताइए इसका। आपने रेडियस यानी निस्फ कुतर, हाइट और यानी ऊंचाई नाप कर ये मालूम किया इसका हजम कितना आया, 0.4, मतलब तकरीबन वो आधा लीटर के बराबर है। तो क्या ये बोतल आधा लीटर की है? लेकिन ये फिर 0.5, आधे का मतलब 0.5 होता है, तो 0.4 कैसे आया? थोड़ा सा पानी कहाँ बच गया? सर आप इसे देखेंगे तो उसके ऊपर से अच्छा, मतलब जब आपने इसे खोला तो यहाँ पर कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, वो पूरी तरह बोतल का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वो कम पानी यहाँ पर आ गया। बहुत अच्छे बेटा, मतलब आपने साबित किया कि वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं सिलेंडर का इस्तवाने का। वेरी गुड।